All right. So now what we'll be doing is producer equilibrium. What is producer equilibrium? Producer equilibrium के chapter में we first need to understand who is an producer. He is an economic agent who is producing goods and services to make प्रॉफिट्स. उसका क्या काम है? उसको पैसे कमाने हैं, जिसके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, बनाता है और ट्रांजैक्शंस करता है, एंड ही इज एन इकोनॉमिक एजेंट. In this chapter you need to understand there are different types of economic profit, different types of profits. हम इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, हम ग्रोस और नेट प्रॉफिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम abnormal profits, normal profits, or supernormal. There are different types of profits that we shall be studying under this. छोटे छोटे questions, MCQs के, differences के, you can get such questions in this chapter. All right? और 6 नंबर का एक अच्छा question तो बनता ही है. So start writing. First we'll be doing is economic and accounting profit. So what is economic and accounting profit? Economic profits are those when total, उससे भी पहले छोटी सी एक बात है ना, what are profits? बेटा एक तो ये word जो profits है उसको ऐसे पाई लिखा जाता है, which means जो भी आपके revenue है, ठीक है, जो भी आपके पहले तो total cost है, we have to minus टोटल रेवेन्यू. लेट्स जस्ट से मैंने 1 करोड़ रुपीस कमाए, 80 करोड़ lakhs was my expenditure, so 20 lakhs is my profit. So this is how you calculate profit. Let's say how are the different profits there. सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सॉरी मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, ये कॉस्ट आएगा, ये रेवेन्यू आएगा, ये कॉस्ट आएगा, खर्चा इतना, रिसीट इतना, सो 20 करोड़ इज योर लैक्स इज योर प्रॉफिट. ठीक, चलिए अब ही सेज इकोनॉमिक प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? दोज कॉस्ट व्हिच इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट costs are your economic profits, whereas total revenue minus total cost, but it includes only explicit costs, are your accounting profits, are your accounting profits, right? So इसमें हमारे पास दो हैं. अब मैं आपको अगर 2 नंबर में क्वेश्चन दे देती हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स. फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. बेटा इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? लिसन, यही फॉर्मूला को यहाँ रिपीट करियो. इट इज द टोटल रिसीट्स और रेवेन्यू ऑफ द फर्म माइनस द टोटल कॉस्ट, and that total cost includes what? Explicit and implicit cost. Either total receipts revenue of the firm minus the total cost, but the total cost includes only explicit cost. Second, ये जो मैंने आपको formulas दिए हैं, this is your formulas. ये रहा, ये आ गया, 2 पॉइंट हो गए. Similarly, shifting to gross profit and net profit. Gross profit or net profit में you need to understand this is your total cost, total revenue minus total variable cost. Variable cost, सिर्फ वेरिएबल, ठीक है. और यहां पर we have total revenue minus total cost which includes total fixed cost plus total variable cost. इतना ही फर्क है. इसको कैसे लिखोगे? पहले एक डेफिनेशन दे देना और फिर फॉर्मूला दे देना. डेफिनेशन मीन्स द सेम थिंग इन वर्ड्स, and here second is your formula. Next we are going to talk about is abnormal profits, normal profits and subnormal profits, या जिसको हम losses कहते हैं. बेटा abnormal profits को supernormal भी कहते हैं. ध्यान से देखिए, कहता when average revenue is greater than average cost. 10 रुपए की चीज तुमने 12 में बेची, you have supernormal profits. इसको एक तरीका और है लिखने का, TR greater than TC divided by Q, which means this only.
which means this only. Next, average revenue equal to average cost. 10 रुपए की चीज तुमने 10 में बेची. TC by Q is equal to TR by Q. ये चीज, इसका मतलब यही है. Last, you have subnormal loss profits, which is losses when average revenue is less than average cost. 10 रुपए की चीज 8 में बेची. Total revenue by quantity is less than total cost by quantity, which means this only. Hurry up, I'll just put it down, you can. और अगर इनको लिखना हो तो आप इसी वे में इसको लिख भी सकते हो. ठीक, राइट. अब हम आते हैं ऑन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. देखो, जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था? It is a different amount of goods and services consumed by a producer with his limited income on different goods and services to maximize his satisfaction. वो भी कुछ सोच के बैठा था. He's also an economic agent. He wants to maximize his satisfaction. Similarly, what is producer equilibrium? What is producer equilibrium? Producer equilibrium is when the producer produces equilibrium. ठीक है, he is producing goods and services and he wants to produce up to that level of output where he maximizes his profit. And याद रखना, he has no intention to change his output. No intention to change his output. So what is producer's equilibrium? It is a situation where the producer produces goods and services to such a level of output that he maximizes his profit and he has no intention to change this level of output. To change his level of output. Done? This is about this. और हमें यहाँ पर ये भी समझना है, हमारे सिलेबस में तो कम है, बट प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को, ठीक है, दो अप्रोचेस से पढ़ा जा सकता है. एक है TR एंड TC अप्रोच और दूसरी है MC एंड MR अप्रोच. हमारे सिलेबस में है MC एंड MR अप्रोच. ये नहीं है, बट इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड. ये थोड़ा सा वेग है बिकॉज टोटलिटी में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हेंस मार्जिनल, जहां हम एक एडिशनल यूनिट में कितना खर्च कर रहे हैं या कितना प्रॉफिट बना पाएंगे वो पढ़ते हैं. इसी वजह से MCMR अप्रोच इज मोर रिकॉग्नाइज्ड, मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर वाइडली यूज्ड. राइट, सो लेट्स गो ऑन दी MCMR अप्रोच. ये कौन सी अप्रोच है? MCMR अप्रोच. तो पहले डिफाइन करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है. इट इज व्हेन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एट सच अ लेवल ऑफ आउटपुट दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट्स. This can be studied with the MCMR approach where you have certain conditions. The conditions he says is MC should be equal to MR. First condition. Second, he says is MC should be rising. Second, and third, MR is greater than average variable cost. मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगी. बिफोर दैट फिर हम ये टेबल बनाएंगे. हम वहां देखेंगे, ये लर्न करना पड़ेगा. यस, अगर क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, यू नीड टू लर्न इट एंड देन मेक इट हैपन. सो ये देखिए, यहां पर और यहां पर एक और भी सच assumption है यहाँ पर. I just forgot. What is the assumption? The assumption is that क्या कहते हैं अपना, we are working under perfect competition markets. Why? देखो MR सेम है और MC is going to be a U-shaped curve. ठीक है, सो इन दो पॉइंट्स पे हमें इक्विलिब्रियम लग रहा है. ये मैंने बनाया MR/AR, ये मैंने बनाया MC. ठीक है, तो एक पॉइंट ये है 2 लेवल का जहां पे F पॉइंट ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब ये दोनों इक्वल है. दूसरा पॉइंट है E का.
ठीक है, इसको m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, है ना, वेयर दैट कुड बी द सेकेंड इक्विलिब्रियम. बड़े सारे MCQs बनते हैं इससे, दैट देयर इज ओनली वन कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, assertion reasonings and all that questions you can get, है ना. तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम है या यहाँ इक्विलिब्रियम है? ध्यान से देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये दोनों फिलफिल कर रहे हैं. अब सेकेंड कंडीशन कहती है MC शुड बी राइजिंग. वाई? देखो, जब मैंने शुरू किया अपना बिजनेस, मेरा 10 रुपए का हम सेलेंगे, सो मेरी कॉस्टिंग यहाँ 14 रुपए बढ़ रही है, तो मतलब खर्चा ज्यादा और रिसीट कम, तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. यहाँ पर भी इसके बाद भी लॉस होगा, राइट. बट F पॉइंट के बाद इज द पॉइंट वेयर यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स, वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स. हेंस ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. इसलिए सेकेंड कंडीशन दी गई है ऑफ MC राइजिंग विच इज पॉइंट E, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट बनाने के बाद देन तो you'll have losses, so there you are not stupid to make losses, you will stop at ON level of output, hence point E is the equilibrium. ये याद रखना है. तीसरी कंडीशन इज when we are running into losses. So this is also the price. He says आप अपना fixed cost देखो, पूरा करो ना करो, it doesn't bother. What is important is that your average variable cost is fulfilled. Fixed cost नहीं पूरी होती, doesn't matter, your variable cost should be fulfilled. That is why this third condition is given. ठीक है, एंड दिस इज इंटायर थिंग. इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन दिस, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. अब देखो, 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट एक्सप्लेन द MCMR अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डिफाइन करोगे, असम्पशन दोगे, कंडीशंस दोगे, टेबल दोगे, डायग्राम दोगे और एक्सप्लेनेशन. सेकेंड है, देखिए, ही कैन गिव यू दैट अ फर्म्स टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट का टेबल, एंड द प्राइस ही विल गिव यू 10, whatever he can give price. तो ये टेबल आप खुद से बनाएंगे और इसको पुट डाउन करना जरूरी नहीं है सेम नंबर्स के साथ, और फिर एक्सप्लेन कर देंगे इस इंटायर कॉन्सेप्ट को. तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए टेबल दे देना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, थर्ड, जो कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी. अब देखो, मैं ON लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी बिकॉज आई एम एट इक्विलिब्रियम E. I would not want to produce less or more. Why? Because I am not interested. Because ध्यान से देखिए, अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, जो कि मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है, इसको N1 ले लेते हैं. बेटा, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा गैप मेरा लॉस है, तो मैं बेवकूफ हूं, मैं ये लॉस झेलूंगी, इसलिए आई विल नॉट वांट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट. नेक्स्ट, इफ आई कम टू प्रोड्यूसिंग अ लिटिल लेस, लेट्स जस्ट से N2 लेवल ऑफ आउटपुट, मैं ऊपर जाती हूँ, ये सारा प्रॉफिट मैं फोरगो कर दूंगी. मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बताया था, आई वांट टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट, मैं चाहती हूँ मैं फुल पोटेंशियल पे प्रोड्यूस करूँ. तो मैं क्यों रुकूं N2 लेवल पे? वाई शुड आई स्टॉप एट N2 लेवल? आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस टिल N लेवल. हेंस आई वुड नॉट वॉन्ट टू प्रोड्यूस वन लेस और वन मोर ऑफ अ कमोडिटी. आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोड्यूस एट N लेवल ऑफ आउटपुट. तो ये क्वेश्चन क्या होएगा? अ प्रोड्यूसर विल नॉट वांट टू प्रोड्यूस वन मोर और वन लेस ऑफ अ क्वांटिटी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. व्हाई? पूरा एक्सप्लेन करोगे शुरू से लेके एंड तक, और इसमें ये 2 चीजें और ऐड कर दोगे, बस. दैट्स ऑल, इतना ही है. दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू हियर. Right? So this is an important chapter, 6-marker question. Many times I have seen it comes directly. All right? So that's all. You just left with the last chapter. See you guys in the 13th video. Okay, bye.